اردو سٹوریز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں آئی کے اس جوان کی اب بیتی جس نے انڈیا کو ہلا ڈالا تھا۔ اس کا نام سید سلیم عباس تھا۔ یہ ایک مکمل کہانی ہے جو اس چینل سے قسطوار آپ کو ملے گی۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 1972 کے دوسرے عشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کے نہایت حساس ادارے میں کسی بھی قسم کے خطرناک کام کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اپنے آپ کو کس طرح والنٹیئر کر رہا ہے۔ قریب 20 دن میرے مختلف قسم کے انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والے مشکلات اور مسائل، خطرات اور پکڑے جانے کے بعد دی جانے والی سزاؤں سے ڈرانا چاہا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے میرا کام کرنا میرا ایک وقتی جنون ہے، اس لیے میں بیک آؤٹ ہو جاؤں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا یہ جنون وقتی طور پر نہیں بلکہ اپنے قوم و ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور قربانی کا جذبہ مجھ میں موجود ہے تو پھر مجھے باقاعدہ ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے بعد میری تربیت شروع ہو گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی جو میں نے 4 ماہ اور چند دن میں مکمل کر لی۔ ملکی سلامتی کی خاطر میں تربیت کے تفصیل میں نہ جا سکوں گا، مختصر صرف یہ عرض کر دوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت اور جوڑ کراٹے، اسٹیٹک اینڈ موبائل سرویلنس کے طریقے، اور اگر خود کو دشمن کے جال میں پھنس جاؤ تو اس سے نکلنے کے طریقے، اور سب سے اہم یہ کہ مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا تھا اور ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان اور سیاسی معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی فوج کے متعلق تمام تفصیلات ازبر کروا دی گئی تھی۔ ان کے ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں اور صوبوں، غرض کے ہر وہ بات جو ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی تھی اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی تھی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دار گیا۔ اس کے تشدد اور جسمانی اور ذہنی اذیتوں کو برداشت کرنے کی تربیت دی گئی کیونکہ میرے اساتذہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس حد تک اذیت برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاؤنی اور فوجی پڑاؤ پر حملہ کرنا، معلومات کے حصول کے طریقہ کار، الغرض ہر پہلو سے مجھے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کے سب سے پہلی ملاقات جو سابق مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ میں ایک چائے کی ایک مشہور کمپنی بلینڈنگ کی تھی، وہ بھارت میں مجھے اپنے کور کے لیے بہت کام آئی۔ میں لوز ٹی کے ایک تاجر کے طور پر بھارتی چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ کور کے مطابق میں بمبئی میں ناگپاڑے کے رہائشی تھا اور یہاں تک کہ مکمل انتظام کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے کسی بھی پوچھے تو اسے بتا دیا جاتا تھا کہ ونود چوپڑا میرا کور نام یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاؤنیوں سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی اور یہی میرا امتحان تھا جس میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کی بلکہ ان کے بعد حساس راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 اور ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ ان وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ ماہر دوران مشن، خطروں کے بامنے والے، ہمارے نگرانی کرنے والے یعنی ہم کہیں پھنس جائے تو دشمن کو ہلاک کرنے والے وغیرہ۔ الغرض یہ ایک مکمل گروپ تھا۔ بحیثیت لیڈر وہ میرا حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے ان سے الگ رہنا اور ان کی سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ رکھنے کی صرف مجھے اجازت دیا۔ غرض ہم 5 افراد کی ایک چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھے اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔
ये एक बात और कि हम पांचों को तरबियत मुकम्मल होने के बाद सिर्फ चंद लम्हों के लिए मिलाया गया था। एक दूसरे के मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात किसी को नहीं थी। ये ऐसे मिशनों के लिए बहुत अहम होता है ताकि अगर कोई दुश्मन की गिरफ्त में आ भी जाए तो तशद्दुद बर्दाश्त न करते हुए अपने साथियों के मुतल्लिक़ कुछ भी न बता सके। आखिरी काम जो अपने राज़ों और साथियों के लिए किया गया था कि हमारी एक दाल निकाल कर इसमें साइनाइड की सख्त प्लास्टिक की एक दाल लगा दी गई थी ताकि जब तशद्दुद बर्दाश्त करने की हिम्मत न रहे तो दाल चबा लिया जाए। दाल में साइनाइड एक जहर लगा होता है ताकि दुश्मन को राज बताकर गद्दार कहलाने की बजाय शहीद होकर सरफरोश होना बेहतर है, ताकि आइंदा आने वाले लोग और नस्लें आप पर फख्र कर सके। ये था हमारी तरबियत का अहवाल, जिसकी तकमील के बाद हमें भारत में अपने मिशन के लिए स्टैंड बाई कर दिया गया था। हम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अपने मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सक़ूत ढाका के बाद भारत अपनी 80% से ज़्यादा फ़ौज मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि साबिक़ा मशरक़ी पाकिस्तान के बाद भारत मगरबी पाकिस्तान को भी निगलना चाहता था। भारत को इस वक्त अपनी फ़ौज से ज़्यादा किए हुए मायदे पर बहुत गरूर था, जिसके तहत भारत पर हमला रूस पर हमला समझा जाता था। पाकिस्तानी अफवाज ने दौरान जंग ही इसी मायदे की वजह से दिफाई जंग लड़ी थी और भारत को इस वजह से मौका मिल गया था कि वो मगरबी पाकिस्तान के दिफाई लिहाज से कमज़ोर पॉइंट्स पर भरपूर हमला करके मगरबी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए। चुनांचे जंगबंदी के वक्त मगरबी पाकिस्तान के 5000 मुरब्बा मील का इलाका भारत के कब्ज़े में आ चुका था। अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम ही मायूस हो चुकी थी। बाद में अफ़गानिस्तान और रूस की जंग में रूस को टुकड़े टुकड़े करके अपनी शिकस्त का रूस से बदला ले लिया था और इंशाअल्लाह 1971 की जंग का भी बदला हम भारत से भरपूर तरीके से लेंगे। हमारा ग्रुप स्टैंड बाय पोजीशन में था कि हमें 3 दिन की रुख्सती मिल गई थी और हिदायत की गई कि अपना सारा सामान अपने अपने घरों में छोड़ आए। सिर्फ जूतों का जो जोड़ा पहना हुआ था वो और 2 एक पैंट शर्ट और कमीज शलवार साथ लाएं जिन पर कोई ऐसा निशान न हो कि वो जाहिर करे कि पाकिस्तान के बने हुए हैं। ये छुट्टी हमारे मिशन पर रवानगी का ग्रीन सिग्नल थी। मुझे कागजात पर अपने वरसा के नाम लिखवाए गए और इसकी 3 कापियाँ की गई। एक कापी मुझे दी गई कि ये अपने वरसा के हवाले कर देनी थी। मेरे बाकी 4 साथी बाकायदा पहले ही पहुँचे थे, इसलिए इनकी तमाम डिटेल पहले ही इनके पास थी। ये कागजात हमारे मिशन पर मौत के सूरत में हमारे वरसा के लिए चीक और सहूलियत देने पर मुँह बननी थी। इस वक्त मेरी वालिदा हयात थी और एक बीवी और चंद माह का लड़का था। मैंने वसीयत में पहले अपनी वालिदा का नाम लिखवाया और फिर बीवी और बच्चे का और 3 रोज़ छुट्टी पर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मेरी बीवी तो कुछ न समझ सकी, मगर मेरी वालिदा ने मेरी अंदरूनी कैफियत को कुछ बांध लिया। मैंने अपने घर वालों को भी न बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ये इल्म था कि मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। रवानगी से चंद लम्हे कबल मैंने अपनी वालिदा को एक लिफाफा दिया जिसमें वो कागजात थे और कहा कि उन्हें बहुत संभाल कर रखना है। वालिद मरहूम की कब्र पर इस दिन में घंटों बैठा रहा। रवानगी से कबल अपनी वालिदा और बीवी बच्चे से ऐसे मिला जैसे ज़िंदगी में दोबारा कभी न मिल सकूँ। इस वक्त जो मेरी अंदरूनी कैफियत थी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ख़ुद को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश की और वालिदा और बीवी को बताया कि मैं चंद माह के लिए कारोबार के सिलसिले में कंपनी की तरफ से श्रीलंका जा रहा हूँ, इसलिए खतूत हो सकता है न बेच सकूँ। हाँ, कंपनी में फ़ोन करके आप लोगों की खैरियत दरियाफ्त कर लिया करूँगा और कंपनी हर माह आप लोगों को तनख्वाह और मेरी खैरियत का बताते रहेंगे। ये सब बातें मैंने अपने सीनियर की हिदायत के मुताबिक। घर वालों को ये इंतज़ाम अजीब लगा, वो कोई सवाल भी कर सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें सवाल करने का मौका ही नहीं दिया और शाम 7 बजे रेलवे स्टेशन चला गया, क्योंकि सुबह 8 बजे मुझे लाहौर रिपोर्ट करनी थी। लाहौर में हमें ऑफिस से आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया। जब पट्टी खुली तो हम एक हाल में मौजूद थे। हाल में बहुत सी कुर्सियाँ रखी हुई थी
और हमारे सीनियर हमसे पहले इन कुर्सी पर बैठे हुए थे। इतने में एक सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस एक जवान शख्स हाल में दाखिल हुआ। हमारे सीनियर ने पाँव जोड़कर उसे सलूट किया। फिर इसने हम सबसे पर्दन मसाफिहा किया और हमें ट्रेनिंग में कामयाब पर मुबारकबाद और कहा कि जिस मिशन पर आप 5 लोगों को भेजा जा रहा है वो पाकिस्तान और हम सब के लिए बहुत अहम है और इस मिशन की कामयाबी पर हमें बहुत सी मदद मिल सकती है। लेकिन याद रखें, हमारा दुश्मन बहुत मकार है। पकड़े जाने की सूरत में जानने के लिए आप लोगों को पुरताइश ज़िंदगी के जवान लड़कियों और वो इशरत की अपर करेगा। इसलिए आप लोगों को 2 में से एक रास्ता चुनना होगा, गद्दारी या फिर शहादत। गद्दारी की सूरत में वो आपसे तमाम राज लेकर तुम्हें फिर भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कोशिश करना कि शहादत को तरजीह देना। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अगर तुम पर ऐसा मौका आ जाए तो ये तुम्हारी सवाबदीद पर मुनहसर होगा कि तुम किस चीज़ गद्दारी तरजीह देते हो। इतना कहकर वो हम 5 से बगलगिर हुआ और हमारे मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की और कमरे से बाहर चले गए। इसके जाने के बाद हमारी तलाशी ली गई, हमारे सिगरेट बटवे और दिगर सामान हमसे ले लिया गया और इसके बदले भारतीय करेंसी, सिगरेट और बटवे हमें दे दिए गए। हमारे एयरबैग हमसे लेकर हमें ऐसे बैग दिए गए जिन पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। हमें साइनाइड से बड़ी दाढ़ी 2 डॉक्टरों ने लगाई और फिर मुझे एक कागज़ दिया गया जिस पर दिल्ली, आगरा और बम्बई के कुछ पते दर्ज थे। ये इन लोगों के पते थे जिनसे हमें भारत में करेंसी और दीगर मालूमात मिल सकती थी। मुझे ये एड्रेस ज़ुबानी याद करने थे और जिस मिशन पर हमको भेजा जा रहा था और वो एक मिशन नहीं था बल्कि बहुत से मिशन थे जिनका पूरा करना था कि इसमें कोई भी काम जो हमारे मुल्की मफाद के लिए बेहतर हो हमें करने की इजाज़त दी गई थी। एक ख़ास मिशन मेरे सुपुर्द किया गया और वो था कि दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ के किसी मुलाजिम को प्लांट करना। इस वक्त टाइपिंग हुआ करती थी और कार्बन पेपर से इसकी कापियाँ बनाई जाती थी। कार्बन को 1-2 बार टाइप किया जाए तो इस पर टाइप की तहरीर आसानी से पढ़ी जा सकती थी। अगर इस तरह इस्तेमाल शुदा कार्बन पेपर इस्तेमाल के बाद रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया जाए और बाद में सफाई करने वाला वो पेपर उठाकर हमें दे दे तो हमें इससे बहुत मालूमात मिल सकती थी। तो दोस्तों, ये था आज का किस्त। दूसरा किस्त कल इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को सुनाने वाले हैं। बनी रहिए हमारे साथ। वस्सलाम।